Good afternoon, dear students. Good afternoon, ma'am. Okay. So in last practical, we have just started the fourth practical. In that, we have seen the joining of two table, left join, right join, inner join, full join. Half part we have completed, and we have also started with the sub queries. We have completed the presentation of sub queries, where we have seen like if the query requires that it should be run with an inner and outer queries. So how to join the two queries? So to join the inner and outer query, either you can use a comparison operator or you can use the keywords like in, any, and all. So this already we have seen. I am just going it little bit so you can just recall all the points. We have started with one example like where we have created an EMP table, and suppose we have seen that if they have been asked like we want to display the information of employee paid more than पूजा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. सो हमने देखा था कि हमको क्या करना है कि ऐसे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जिसको पूजा से ज्यादा सैलरी मिल रही है. तो यहाँ पे अननोन पैरामीटर क्या है? वी डोंट नो व्हाट इज द सैलरी ऑफ पूजा. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सैलरी ऑफ पूजा, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट who is getting a salary more than Pooja. So here you can see like Pooja is working on a salary that is 45,000. So when you run the inner query, that is inner query, so it will give the output as a 45,000, and this output, the output of inner query will serve as an input to the outer query, where it will find out the information from employee who is getting salary greater than 45,000. So then it will give the output. Then again, the next question, we have seen one example like list the name of employee who live in the same city as of Rakesh. Now here the unknown parameter is we don't know in which city Rakesh is living. So in an inner query, we have to first find out where Rakesh is living. So we have written a query like select city from employee where name is Rakesh. So by using this inner query, we will get output that Rakesh is living in a Pune. Now we have to find out who are the other employees who are also living in the same city, that is in a Pune. So here outer query is select star from EMP where city equal to, in bracket, select city from employee where name equal to Rakesh. So here they have given in output who are the different employees who are living in the same city where the Rakesh is living. The next query we have seen like display the information of employee who is paid less salary than average salary throughout the company. But we don't know what is an average salary of a company. अब अगर मैंने आपको ये टेबल दे दिया है और मैंने पूछा बताओ एवरेज सैलरी क्या है, ओके यू हैव टू write a function where you have to first find out the average salary, and then you can say कि average salary से नीचे कौन कौन है जो काम करते हैं या उसके ऊपर कौन लोग हैं जो काम करते हैं. लेकिन पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि average salary कितना है. So for that we have to write down a inner query जिसमें हम inbuilt aggregate function होते हैं mean, max, average, count, likewise. So we have to use here a average function. तो हमने inner query लिखा select average of salary from employee. तो employee table में जो salary column है उसका वो क्या निकालेगा, average निकालेगा. ओके तो ये average आ गया 40,300. दिस इज एन आउटपुट ऑफ दिस इनर क्वेरी. और ये क्वेरी का ये जो आउटपुट है ये सर्व होगा आउटर क्वेरी के इनपुट के लिए. आउटर क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन दिस एवरेज सैलरी. अभी जो भी एम्प्लॉय एवरेज सैलरी से नीचे काम करेंगे उनका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा जो 40,300 के नीचे काम करते. अगर मैंने इसका अपोजिट पूछा, मैंने बोला गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ अ एम्प्लॉय whose salary is greater than the average salary of company. So what change you have to do in this query? क्या चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमको? अगर मेरी क्वेरी ऐसे कि मुझे
ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हैं जिनको सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा मिल रहा है. व्हाट चेंज यू हैव टू मेड इन दिस क्वेरी? Greater than. Madam was greater than. Right, perfect. Means you just have to change this symbol. ये सिंबल क्या कर रहा है? आपकी आउटर और इनर क्वेरी को ज्वाइन करने का काम कर रहा है. और हमने यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों यूज किया? आप देखोगे कि हर इनर क्वेरी का आउटपुट जो है ये सिंगल रो में एक सिंगल वैल्यू है. ओके, और जैसे अगर ये सिंगल वैल्यू से अलग वैल्यू आती है, जैसे हमने उसके बाद जो एग्जांपल देखे थे कि अगर आपकी इनर क्वेरी का जो आउटपुट है वो एक रो से ज्यादा है, मल्टीपल रो में आता है, so in that case you cannot use a comparison operator directly. With comparison operator you have to write one keyword. That keyword can be all or any or in, and we have started with the example of that, जिसमें हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिसमें सेम टेबल बट डिपार्टमेंट नंबर ये एक कॉलम मैंने उसमें ऐड किया था. So in this table here, if you see, the example is display the employee name, salary and department number of those employees whose salary is the minimum salary of that department. तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? आपको यहाँ पे अगर क्वेरी को देखो हाफ पार्ट में, अगर मैं जैसे अगर आप क्वेरी का हाफ पार्ट देखोगे जिसमें हमको क्या करना है कि हमको एम्प्लॉय का क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, उसका नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर. तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय. लेकिन किसका इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है? ऑफ द एम्प्लॉय whose salary is the minimum salary of that department. तो भी अगर आप देखोगे कि टेबल जो है हम लोगों ने जो लिया है इसमें डिपार्टमेंट नंबर के लिए 3 वैल्यूज है, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20 एंड डिपार्टमेंट नंबर 30. तो सबसे पहले हमको निकालना है डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी. अब हमको पूरे टेबल की मिनिमम सैलरी नहीं चाहिए. पूरे टेबल की मिनिमम सैलरी की बजाय व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एवरी डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी क्या है. अगर आप देखोगे कि जैसे डिपार्टमेंट 10 पे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, 1, 2, 3 and 4. ओके, तो इनकी सैलरी कितनी है? 5,000, 8,000, 20,000 एंड 90,000. तो डिपार्टमेंट 10 के लिए मिनिमम सैलरी क्या है? 5,000. सो दिस इज अ डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी. इफ आई टॉक अबाउट डिपार्टमेंट नंबर 20, सो डिपार्टमेंट नंबर 20 में 3 लोग काम करते हैं जिनकी सैलरी है 20, 70 एंड 45,000. तो इसकी मिनिमम सैलरी क्या है? 20,000. And likewise, if I talk about a department number 33 rows are there where 30,000, 50,000 and 8,000. So department 30 के लिए minimum salary क्या है? 8,000. तो डिपार्टमेंट वाइज अगर हम मिनिमम सैलरी निकालेंगे तो हमको 3 वैल्यू मिल रही है. डिपार्टमेंट 10 के लिए मिल रही है 5,000, डिपार्टमेंट 30 के लिए मिल रही है 8,000 एंड डिपार्टमेंट नंबर 20 के लिए मिल रही है हमको 20,000. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट, हमको क्या करना है? इस मिनिमम सैलरी पे जो काम कर रहे हैं उसका हमको उनकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है. सो इनर क्वेरी व्हाट वी हैव रिटर्न, सिलेक्ट मीन सैलरी. तो सैलरी का मिनिमम वैल्यू देगा, लेकिन पूरे टेबल की मिनिमम चाहिए क्या? नो, वी वांट अ मिनिमम सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट वाइज. सो हमने लिखा सिलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो ग्रुप बाय से क्या होता है? ग्रुप बाय से आपका जो भी डेटा होता है टेबल का, जिस कॉलम के ऊपर आपने ग्रुप बनाया है उस कॉलम के लिए जहां पे भी उसको सेम वैल्यू दिखेगी उसका वो क्या बनाता है? ग्रुप बना लेगा और उस ग्रुप पे एक फंक्शन वो अप्लाई करता है. सो लाइकवाइज डिपार्टमेंट 10 के रोज को एक साथ ले लिया, 20 को, 30 को, और उसके ऊपर मिनिमम सैलरी फाइंड आउट की. ओके, सो उसको कितनी सैलरी मिल गई? सो 10 डिपार्टमेंट की सैलरी आ गई 5,000, 20 नंबर के डिपार्टमेंट की सैलरी मिनिमम सैलरी आ गई 20,000 एंड डिपार्टमेंट नंबर 30 की मिनिमम सैलरी आ गई 8,000. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हु आर वर्किंग ऑन दिस 3 सैलरी. तो अभी यहाँ पे देखो इनर क्वेरी का जो आउटपुट है ये एक रो से ज्यादा है, 3 वैल्यूज हमारे पास आई है. सो वी हैव टू यूज सम अदर सिंबल.
अपार्ट फ्रॉम कंपैरिजन ऑपरेटर, तो जब हमको ऐसे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी जो इधर 5,000 पे और 20,000 पे और 8,000 पे वर्क कर रहे, तो इतनी बार और लिखने के बजाय हम यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज कर सकते हैं, इन, वी कैन यूज अ इन कीवर्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा था, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दोज एम्प्लॉय whose salary is higher than all employers salary। हमको क्या करना है, एम्प्लॉयर्स जिस सैलरी पे काम करते हैं उन सबसे ज्यादा जो जिसको सैलरी मिल रही है उनका इंफॉर्मेशन मुझे शो करना है। बट हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि डेवलपर्स को कितनी सैलरी है टेबल में। ओके, सो हमने इनर क्वेरी क्या लिखी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पोस्ट इक्वल टू डेवलपर। अब इसका आउटपुट अगर आप देखोगे इनर क्वेरी का क्या आया, सो देयर आर टू डिफरेंट रोज आर देयर वेयर डेवलपर पोस्ट इज देयर, जिसमें एक की सैलरी 20,000 है और एक की है 30,000। अगर मैं टेबल पे जाती हूँ यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज वन डेवलपर वर्किंग ऑन अ 20,000, दिस इज एन अनदर डेवलपर वर्किंग ऑन अ 30,000। तो जैसे हम लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पोस्ट इक्वल टू डेवलपर, तो डेवलपर पोस्ट के दो रोज आते हैं, इसके लिए हमको आउटपुट में दो सैलरी मिलती है, 20,000 एंड 30,000। तो जब एक से ज्यादा रो आ गई है हमारी इनर क्वेरी का आंसर, सो वी कैन नॉट यूज अ ओनली ग्रेटर देन सिंबल, इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन वी हैव टू यूज ग्रेटर देन ऑल, क्योंकि हमारे क्वेरी में क्या आया हुआ है, कीवर्ड क्या आया है, हायर। वी हैव टू फाइंड आउट अ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज higher than all employers salary, so when keyword is all here we have to use greater than all। अगर इसके बजाय मैं बोलूं कि सब डेवलपर की सैलरी से लेस देन वाले मुझे चाहिए, तो खाली मैं लिखूंगी लेस देन ऑल, दैट्स इट। So same here, only the query is display the employee name, salary and department number of those employees whose salary is lower than all डेवलपर सैलरी। तो डेवलपर की सैलरी 20 और 30,000 है, दोनों से लेस, दोनों से लेस मतलब क्या चाहिए, 30,000 से भी लेस चाहिए और 20,000 से भी लेस चाहिए। तो 20,000 से लेस वाले जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जब हम लेस देन ऑल लिखते हैं तो इनर क्वेरी के आउटपुट में जितनी भी वैल्यूज आई है उसमें से सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू जो है उससे लेस वाले लोगों के लिए क्या करता है, वो आउटपुट फाइंड आउट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ दोज एम्प्लॉयज whose salary is higher than salary of any developer salary। Now just understand here keyword is higher than salary of any developer salary। यहाँ पे all कीवर्ड नहीं है, any कीवर्ड है। तो इसके लिए हमने दोनों इनर और आउटर क्वेरी को ज्वाइन करने के लिए सिंबल क्या यूज किया, ग्रेटर देन यूज किया, लेकिन उसके साथ कीवर्ड क्या लगा दिया हमने, एनी कीवर्ड लगा दिया है। तो जब हम एनी करते हैं तो एनी में 20 या 30 दोनों में से किसी के भी ऊपर अगर है तो उसका क्या करेगा, वो आउटपुट देगा। और यहाँ पे अगर मैंने बोला कि लेस देन द सैलरी ऑफ डेवलपर सैलरी, एनी डेवलपर सैलरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन एनी। सो लाइकवाइज यू कैन सॉल्व दिस क्वेरीज। ओके, अब हम ये सब हैंड्स ऑन करके देखेंगे, और हैंड्स ऑन करने के बाद दिस इज एन assignment that I will upload in your Google Classroom, where you have to create this two table, customer info table and account table। दो अलग अलग टेबल आपको बनाने हैं, ये डेटा उसमें स्टोर करना है, और उसके बाद आपको ये जो असाइनमेंट में जो सब अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहेगा फॉर फोर्थ प्रैक्टिकल। नाउ विल स्टार्ट विथ आवर प्रैक्टिकल hands on। any query from your side student? Any query from your side student, or should I start MySQL? Yes, ma'am. Okay. So here whatever the queries we have seen, I have just created that queries ताकि हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाए। जो टेबल मैंने यहाँ पे पीपीटी में आपको दिखाया था, this one employee table,
लेकिन मैंने इस टेबल के बजाय जो इसके बाद वाला टेबल लगने वाला है जिसमें हमने डिपार्टमेंट नंबर ऐड किया है, तो यही टेबल मैंने क्या किया, ऐड करके 10 rows we are going to add in our MySQL. Okay, so here I have created a table, employee table, with the column employee ID, employee name, city, post, salary and department number. तो यहाँ पे जाके हम लोग ओके, एम्प्लॉय नाम का टेबल ऑलरेडी है, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दैट टेबल हियर. ओके, टेबल को ड्रॉप कर दिया है. नाउ आई एम क्रिएटिंग दैट टेबल बाय अ क्वेरी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम employee ID with integer, employee name with varchar, city with varchar, post with varchar, salary with int and department number with int data type. Okay, so here our table is created. We have not added any primary key, anything. If you want, you can add a primary key, not null constraint, depend on you. Okay, now we have to insert this 10 rows in the table. Okay, so I have already created that query. एक ही क्वेरी में मैंने 10 के 10 रोज जो है उसको क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है. जब आप इंसर्ट करोगे, डू इट वेरी प्रॉपरली, अदरवाइज इंसर्ट 1 by 1 रो. ओके, तो अभी हमारे टेबल में 10 रोज इंसर्ट हो गए हैं. सो इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डाल दी है, कॉमा करके सेकेंड, कॉमा करके थर्ड, देन फोर्थ, लाइकवाइज 10 rows we have. Now if I am using select star from EMP, so you can see like whatever the table where we want to create, we want to run our queries, that table is created. Okay, now I'll go one by one. Okay, यहाँ पे first query क्या दिया है हमको, कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, पूजा जितने सैलरी पे काम करती है उससे ज्यादा सैलरी पे कितने लोग कौन है जो काम करते हैं. ओके, सो वी हैव टू सी लाइक पूजा इज वर्किंग ऑन 45,000. तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले सिंपल क्वेरी लिखती हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम इक्वल टू इन सिंगल कोट पूजा. इससे मुझे क्या मिल गया, ओके वेर ई नेम, सॉरी. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, पूजा जहाँ पे भी नाम मिलेगा उसकी सैलरी उसने क्या कर दी, प्रिंट कर दी. तो क्या आ गया वैल्यू, 45,000 आ गया. इफ यू सी हियर कि ये जो हमारी इनर क्वेरी थी, ये रन करने के बाद हमको आउटपुट क्या मिलता है, इसका 45,000 तो हमको मिल गया. अब ये क्वेरी का आउटपुट हमको आउटर क्वेरी के लिए देना है, यानी हमको देखना है कि हु आर द डिफरेंट एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग द सैलरी मोर देन 45,000. ओके, तो हमको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where salary should be greater than, किससे ग्रेटर होनी चाहिए, पूजा की सैलरी से ग्रेटर होनी चाहिए. तो पूजा की सैलरी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेरी क्या लिखी थी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर नेम इक्वल टू पूजा. तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इफ यू सी हियर, सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर आप जो क्वेरी लिखते हो दैट इज योर इनर क्वेरी. ओके, और इस इनर क्वेरी का जो भी आउटपुट रहेगा, जैसे हमने पहले ये सिंपल क्वेरी रन करके मैंने बताया आपको कि इस क्वेरी का आउटपुट क्या आता है, 45,000. तो योर SQL engine when it gets the query in the form of outer and inner query, first it run always this inner query, and whatever is the output of this inner query, it will serve as a इनपुट टू दिस आउटर क्वेरी. तो सैलरी ये 45,000 ये आउटपुट किसको लगाएगा, ये यहाँ पे जाके इसको ये पुट करेगा. ओके, सो जैसे अभी हम इसको रन करेंगे इस क्वेरी को, ई नेम, हाँ या यस यस मेमोराइज वेयर ई नेम. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी लोग है जिसकी सैलरी 45,000 से ज्यादा है उनका क्या आ गया, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ गई. अब सेम क्वेरी में मैंने आपको एक चेंज ये दिया, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज गेटिंग मैक्सिमम मोर सैलरी देन पूजा.
तो क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे इस क्वेरी में? आई डोंट वांट द फुल इंफॉर्मेशन, आई जस्ट वांट द नेम ऑफ दैट गाय. Select ename. Yes, Select ename. perfect, perfect. Instead of using the full star, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए कि उनका सिर्फ नाम मुझे पता करना है. तो सेम क्वेरी, तो मुझे पता चल गया ये 3 बंदे ऐसे मेरे कंपनी में जिनको पूजा से ज्यादा सैलरी मिलती है. अब मैंने बोला कि उनका नाम और सैलरी दोनों दिखा दो. What I will just change, I will just make here ename comma salary, right? So you can find out जो आपको कैसा आउटपुट चाहिए. So likewise you can write down the queries. Now in our PPT, our second query is we have to find out the name of employee who is living in the same city as of राकेश. तो अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है पहले कि राकेश कौन से सिटी में रहता है. ओके, तो अभी मैं पहले सिंपल करती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. यहाँ से आपको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा राकेश इज लिविंग इन द सिटी पुणे. ओके, लेकिन ये हमको दिख रहा है, इसके लिए हमको पता है जब कोई क्वेरी लिखता है तो उसको क्वेरी देना पड़ता है. ओके, तो अभी हमको क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट, हमको सिर्फ वो एम्प्लॉइज के नाम चाहिए. हमको सिलेक्ट ename फ्रॉम EMP वेयर, कौन से एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन हमको शो करनी है जो कौन सी सिटी में रहते हैं, जिस सिटी में राकेश रहता है. सो वेयर सिटी शुड बी इक्वल टू द सिटी ऑफ राकेश. तो इसके लिए राकेश की सिटी फाइंड आउट करनी, इसके लिए हमने इनर ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे सिलेक्ट सिटी फ्रॉम EMP where ename equal to राकेश. सो पूना, यहाँ पे इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, पूना. तो यहाँ पे ये इनर क्वेरी का आउटपुट आउटर क्वेरी को लग गया. तो आउटर क्वेरी क्या बन जाएगी, सिलेक्ट ename फ्रॉम EMP वेयर सिटी इक्वल टू पुणे. तो अभी पूना में कितने लोग हैं जो रहते हैं, सो पूना में रहने वाले लोग हैं 1, 2 एंड 3. इसके लिए आउटपुट में क्या आएगा, पहले आएगा राकेश, देन आएगा भाविका एंड देन आएगा पूजा. ओके, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, हाउ यू आर रनिंग दिस क्वेरीज? Yes, ma'am. Any doubt from your side? Okay, so now like third query is we have to find out the employees information who are getting a lesser salary than average salary of your company. तो हमको पहले पता करना है कि पूरी कंपनी की एवरेज सैलरी कितनी है. सपोज मैंने सिंपल क्वेरी लिखा, सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एवरेज सैलरी अभी जो है ये पूरे वैल्यूज की कितनी आई है, 34,600. हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज है, कौन एम्प्लॉयज है जिनको इस सैलरी से मतलब एवरेज सैलरी से भी नीचे सैलरी मिल रही है. तो हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज लेस देन, सिलेक्ट. अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एवरेज सैलरी फ्रॉम EMP. सो ये इनर क्वेरी का आउटपुट हमको पता है क्या है, 34,600. तो 34,600 से नीचे जितने भी लोग रहेंगे उनका हमको क्या मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिला. अब मैंने इसका अपोजिट बोला, आई हैव टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय हु आर गेटिंग अ ग्रेटर सैलरी, मोर सैलरी देन द एवरेज सैलरी ऑफ that company. So we have to just change the symbol. तो 34,600 के ऊपर जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं उनका क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. मैंने बोला कि मुझे मैक्सिमम सैलरी जो है इस टेबल की, ओके, वो फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे हम लोग फाइंड आउट, how you can find out the maximum salary of any table or from any column? Max function. Yeah, we have to use select max of salary from EMP.
अब मैंने बोला कि इस मैक्सिमम सैलरी पे जो काम करता है उसका मुझे नाम चाहिए, तो हम सिंपल क्वेरी कैसे लिख सकते हैं? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP where salary should be equal to max salary. लेकिन when you use मिनिमम मैक्सिमम एवरेज एग्रीगेट फंक्शन अगर आप डायरेक्टली वेयर के साथ यूज करते हो तो ये एरर देता है, यहाँ पे वो रन नहीं करता है। ओके, सो जब ऐसे टाइप की कुछ क्वेरीज आपको रन करनी है कि हमको फाइंड आउट करने की मैक्सिमम सैलरी पे कौन काम करता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैक्स सैलरी डायरेक्टली आपको इनर आउटर क्वेरी लिखना पड़ेगा, जहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी शुड बी इक्वल टू ब्रैकेट में सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP। ओके, तो उसने देखा कि सबसे हाईएस्ट सैलरी क्या है 90,000, हु इज वर्किंग ऑन 90,000? दीपा। तो उसने क्या किया, उसका नाम हमको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। मैंने बोला कि मिनिमम सैलरी पे कौन काम करता है वो फाइंड आउट करो। सो इंस्टेड ऑफ दिस यू जस्ट हैव टू चेंज मैक्स टू मीन। So he will first find out the minimum salary, that is in 5,000, and he is going to give the name of that person. Okay, understanding this? Yes. Okay, so now next queries we have to see that where we have to add the symbols like all with greater than or less than। तो जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल जो देखा था ग्रेटर देन ऑल के लिए, इनका हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम ग्रेटर देन ऑल देखते हैं, जिसमें हमने देखा था वी वांट टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय of those employee whose salary is higher than all developers salary। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेवलपर्स की सैलरी क्या क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं। सो मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर पोस्ट इक्वल टू डेवलपर। सो वी गॉट दैट कि डेवलपर की जो सैलरी है ये दो वैल्यूज में आ रही है 20,000 एंड 30,000। अब मुझे फाइंड आउट करना है ऐसे एम्प्लॉयज जिनको जितने भी डेवलपर है उनको जितनी भी सैलरी मिल रही है उन सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट, सपोज अभी मैं सिंपल लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी शुड बी ग्रेटर देन, अब मैं ऑल या एनी कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। ओके, हम देखते हैं कि क्या एरर आता है अगर हम नहीं लगाते हैं तो। और मैंने लिख दिया सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर पोस्ट इक्वल टू डेवलपर। ओके, सो व्हाट ही इज गिविंग अ एरर, यहाँ पे एरर क्या दिया उसने, सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रो। इसका मतलब जब भी आपकी इनर सब क्वेरी एक रो से ज्यादा आउटपुट रिटर्न करती है तो आपका ये क्वेरी कभी भी प्रॉपर रन नहीं होता अगर आपने दोनों क्वेरी को ज्वाइन करने के लिए अगर आपने एनी या ऑल कीवर्ड नहीं यूज किया, आपको आउटपुट कभी नहीं देगा। ओके, अब सेम क्वेरी को हमने खाली क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑल। सो नाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ओके, जहां पे वो क्या बताएगा, जहां पे वो क्या बताएगा कि हु आर द डिफरेंट एम्प्लॉइज हु इज हैविंग अ सैलरी मोर देन 20,000 एंड मोर देन 30,000। 20,000 से सिर्फ अभी एक और डिफरेंस समझ लो यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन ऑल लगाती हूँ तो वो क्या करता है कि इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें से हाईएस्ट वैल्यू देखता है, क्या है हाईएस्ट वैल्यू, क्या है 30,000। तो हाईएस्ट वैल्यू से ग्रेटर जो रहेंगे ना वही आउटपुट आपको यहाँ पे लगाएगा वो। ओके, और जब आप ग्रेटर देन एनी करोगे यानी इंस्टेड ऑफ दिस क्वेरी, सपोज मैंने क्या किया सेम क्वेरी लिखी बट इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन ऑल मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन एनी, तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द चेंज इन द बोथ आउटपुट? मैम इसमें 20,000 से ऊपर वाले बताएगा मैम। राइट, व्हाई? यानी वो दोनों लेगा मैम,
20,000 भी और 30,000 दोनों चेक करेगा मैम इसमें। राइट, देखो दोनों में चेक करता है, इसमें भी क्या करता है वो, इसमें ऑल में भी दोनों को चेक करता है, लेकिन दोनों में से कौन सी सैलरी को कंसिडर करता है, हाईएस्ट के लिए कंसिडर करता है। लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एनी मतलब क्या, आइदर इससे ग्रेटर या फिर इससे ग्रेटर। तो जब हम बोलते हैं कि इससे या इससे, तो वो 20 को भी कंसिडर करता है और 30 को भी। इसके लिए 20 से ग्रेटर वाला जो वैल्यू है वो भी उसने क्या किया, यहाँ पे कंसिडर किया, जो यहाँ पे उसने क्या कर दिया था, ओमिट कर दिया था। सो ग्रेटर देन ऑल में इन दोनों से भी ग्रेटर, दोनों से भी ग्रेटर, और ग्रेटर देन एनी में मतलब किसी एक से भी ग्रेटर रहा तो भी चलेगा। सो दिस इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज। ओके, अब अगर हम यहाँ पे सेम क्वेरी को ग्रेटर देन ऑल के बजाय, सॉरी ग्रेटर देन एनी के बजाय हमने लेस देन एनी किया, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन एनी, इसका मतलब क्या होगा कि ये दो जो वैल्यू आई है, 2,000 हाँ यस, किसी एक से भी छोटा रहा तो चलेगा। ओके, तो 30 से भी नीचे है तो भी वो कंसिडर करेगा, 20 से नीचे है तो भी कंसिडर करेगा। सो इफ यू सी हियर, यू कैन इन द आउटपुट अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, 30 के नीचे 20 आता है तो इसके लिए उसको भी कंसिडर किया। ओके, सो 20 के नीचे वाले एज वेल एज 30 के नीचे वाले, सो एनी किसी से भी। और जैसे अगर इफ आई चेंज हियर लेस देन ऑल, दोनों से जो छोटे हैं तो ही उनकी वैल्यू कंप्लीट आनी चाहिए। कोई बताएगा कि क्या आउटपुट आएगा इसका, इसमें से अगर मैं बोलूं इसमें से कौन से रोज यहाँ पे ओमिट किए जाएंगे इस क्वेरी के लिए? So here he have omitted the values of 20,000 also, because we asked that we want a employees information whose salary is less than all the salaries of the developer. तो डेवलपर की सैलरी कितनी है, 20,000 है और कितनी है, 30,000 है। तो दोनों से नीचे चाहिए, मतलब 30,000 से नीचे तो चाहिए ही, लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है, 20 से भी नीचे चाहिए। तो इसके लिए खाली ये तीन वैल्यूज आए। यहाँ पे क्या है, इसमें एनी मतलब आइदर 20 से लेस और 30 से लेस। जब और आ गया तो इसलिए उसने क्या किया, 20,000 वाले भी रोज दिखाए, क्योंकि ये किसको, किस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, लेस देन 30 की कंडीशन को क्या करता है, ट्रू करता है। तो इसमें ये वैल्यूज क्या करता है, वो शो करता है। सो दिस इज एन इनर एंड आउटर क्वेरी। एक जो हमारा इन वाला क्वेरी है वो मैं बता देती हूँ खाली। इन क्वेरी क्या है, जिसमें हमको डिपार्टमेंट वाइज जो मिनिमम सैलरी है उस सैलरी पे जो लोग काम करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके, तो अभी सिंपल हम लेते हैं, पहले मैं बताती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो अभी अगर मैं सिंपल ऐसे लिखूं यहाँ पे जाके सिलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो पूरे टेबल की मिनिमम सैलरी उसने मुझे दिखाई, जो क्या है 5,000। सेम क्वेरी को मैंने चेंज किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रुप बाय डीपीटी नंबर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ओके, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डिपार्टमेंट नंबर कॉमा मिनिमम सैलरी। तो वो क्या करेगा, पहले 10 वैल्यू का जितने भी वैल्यूज है उसका ग्रुप बनाएगा और उसकी मिनिमम सैलरी वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, जैसे हमने पहले यहाँ पे देखा था। ओके, जैसे यहाँ पे हमको पता है कि 10 पे 1 2 3 एंड 4 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसमें सबसे छोटी सैलरी क्या है 5,000 है, वो उसने वैल्यू दिखा दी। ऐसे ही 20 के लिए 20 के लिए कितनी है, 20,000 है, 30 के लिए है 8,000। तो उसने ग्रुप बनाया और ग्रुप के ऊपर मिनिमम ये सैलरी क्या किया, उसने फंक्शन रन किया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि इस डिपार्टमेंट की जो मिनिमम सैलरी है तीनों पे कौन काम करता है। ओके, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट ई नेम कॉमा salary from EMP where salary equal to in bracket
select mean salary from EMP group by department number. ओके सो यहाँ पे जब मैं इक्वल लेती हूँ तो एरर देता है. वी हैव टू यूज हियर अ कीवर्ड दैट इज इन. तो उसने क्या किया, तीनों की मिनिमम सैलरी क्या है 5000. 5000 पे जितने लोग काम कर रहे हैं, 20000 पे जितने लोग काम कर रहे हैं और 8000 पे जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सब का उसने क्या किया, हमको नाम यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले किया. ओके सो दिस इज द एंड ऑफ अवर फोर्थ प्रैक्टिकल. कल हम थोड़ा रिवीजन लेके फिफ्थ प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे जो PL/SQL का रहेगा. सो एवरीबडी हैज टू ज्वाइन ऑन अ टाइम एंड कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि PL/SQL के लिए कोई अच्छा मोबाइल ऐप अगर रहेगा तो प्लीज ढूंढ के दो, ताकि जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो उस मोबाइल ऐप पे PL/SQL के प्रैक्टिकल रन कर सकते हैं. So anyone just find out what are the different good mobile app for PL